Good morning, guys. Can anyone able to acknowledge? Am I audible? Yes, sir. Okay, good. We'll just start in a couple of minutes. Only 8 students are there. We'll just wait for 1 more minute so that others will also join. Okay, guys. Let us continue the today's section. In the earlier 5-6 sections that we have conducted on the second module, that is introduction to control chart. We have done with all the control chart applications, like for example, a control chart for variable like X bar chart, R bar chart, and standard deviation chart. And we have also done with attribute control chart, that is N chart, NP chart, C chart, and mu chart. Right. So some of the basic fundamentals how to implement uh, this attribute control chart or variable control chart, how to set the control limit for this chart, and some already pre-solved examples हम लोग ने दिखा था. So itne, whatever the examples we have seen so far, it contains a large number of samples, 25, 30. तो आपके एग्जाम में I was told previous also that so such a huge number of samples will not be there for your example, because it is generally whatever the set process is that we are repeating from for each and every sample. So इतने number of samples नहीं रहेगा, just for your understanding and to track the whatever the information that you have gained. We are generally limiting to some very fewer number of samples. For example, we have got छोटा सा simple right. So in the today's section, let us try to solve some of the numericals based on this control chart. So हर एक numerical cover करना possible नहीं. In each and every class we'll see one or more numerical and थोड़ा सा theory part हम देखेंगे. That is theory part मतलब the second part of this control chart part, that is acceptance sampling. So that part also we are going to start in the today's section. So let us have a look over the first example. The first example, if you go through the statement, it says that the manufacturers of coated polyester film uses an automatic inspection process to identify defects in coating. Alright, so there are certain coatings, polyester का एक film coating film है, उसके अंदर जो भी defects है, उसके लिए automatic inspection process उन्होंने develop किया है. The specific location of these defects is automatically recorded so that manufacturer knows exactly where within the run the defects are located, right? So the exact location of the defect in which unit, in which sample it is present, so आप automatically track कर सकते हो. ठीक है. So each hour the number of defects is recorded along with the length of coated product produced in a linear feet, right? So linear feet length wise कितना फीट है उसका, वो फीट भी उन्होंने मेजर किया है, एंड प्लस विद इन दैट फीट हाउ मेनी डिफेक्ट्स आर देयर. सो वो डेटा उन्होंने दिया. दिस डेटा इज गिवन फॉर 16 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. सो सैम्पलिंग का फ्रीक्वेंसी देखो, उन्होंने क्या बोला कि ईच आवर, राइट. So for after each hour we are going to measure, they have measured these number of defects, and the 1 hour में कितना कोटिंग फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस किया, सो दैट इज आल्सो दे हैव गिवन देयर. ठीक है. तो 16 आवर्स के लिए उन्होंने दिया. थैंक यू सर.
So for 16 hours they have given the data. Okay. And they have said that select and use the appropriate control chart for this situation. ठीक है, इसमें उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया कि कौन सा कंट्रोल चार्ट आपको यूज करना है और प्लॉट करना है. The ultimate decision is left to you. So as a quality engineer you are going to choose the appropriate control chart और उसके लिए control limit set करना and you need to take a decision whether your process is in statistical control or it is out of control. ठीक है, just carefully observe that sample number दिए हैं, right? The number of defects in the sample they have given, and within this 1 hour, so this is for each one sampling frequency 1 hour का दिया. So within this 1 hour this much amount of linear fit is produced, 92505 as a producer. Okay. So guys, since you have already seen the various charts, so please let me know from your side which chart is applicable here. Anyone? Anyone? ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एग्जाम में मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा, दैट इज अप टू यू. यस, C chart. सी चार्ट. ओके, और फर्स्ट हमारे पास दो चार्ट है, और एक तो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट है हमारे पास एंड सेकंड वन वी हैव एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट. सो दोनों में से कौन सा यूज करोगे आप? एट्रीब्यूट, बिकॉज वेरिएबल कंट्रोल चार्ट में जनरली मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे टर्म पिक्चर मेथड्स, नथिंग इज अवेलेबल हियर. So the data information is available which is a attribute in nature, right? So number of defects के बारे में उन्होंने information दिया है, not about any parameter or any quality characteristics that we can measure on numerical scales. So first it is belongs to attribute control chart, right? तो attribute में हमारे पास 4 control charts है. One we have N chart, second one we have NP chart, second one we have NP chart, third we have C chart and fourth we have U chart. ठीक है, so इसमें से first दो chart N and NP chart, so these charts are belongs to number of defect units. ठीक है, so number of defective units, sorry इसमें P chart and NP chart है. So P and NP chart are related to the number of defect units. P में fraction count होता है और NP में number, actual number of defect units count होता है. ठीक है, and this P chart as I told it is used for fixed sample size as well as you can also use it for variable sample size, and this NP chart can be used for only fixed sample size and you cannot use it for variable sample size. ठीक है, अभी जो इंफॉर्मेशन दिया यू कैन सी द इंफॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स एंड इट इज़ नॉट अबाउट अ डिफेक्टिव यूनिट्स, हाउ मेनी डिफेक्टिव यूनिट्स आर देयर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. तो स्ट्रेट वे में पी एंड एन पी चार्ट यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज पी एंड एन पी चार्ट्स आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ डिफेक्ट यूनिट्स एंड नॉट अबाउट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स. ठीक है, तो एन एंड एन पी एलिमिनेट हो गया, तो बचता है मेरे पास सी एंड म्यू चार्ट, राइट? C chart basically it stands for count chart, C को हम count chart बोलते हैं and U को unit chart बोलते हैं, right? And if you see this C chart and this two, both the charts are used for number of defects. ठीक है, तो यहाँ पे number of defects दिया है, that is okay. So either you can go with the C or U chart. ठीक है, अभी इन दोनों में से और एक difference है, this C chart is always used for a fixed sample size. जिसका सैम्पल साइज फिक्स्ड रहता है उसके लिए जनरली सी चार्ट यूज होता है, एंड इफ योर सैम्पल साइज इज वेरिएबल रहे तो जनरली यू साइज और यू चार्ट यूज होता है. जनरली इट इज यूज्ड फॉर वेरिएबल चार्ट, यू चार्ट इज यूज्ड फॉर वेरिएबल सैम्पल साइज, but you can also, if you wish, you can also go with the fixed sample size also, but
The intention is not to use the fixed sample, but the intention of the purpose is used to for variable sample size. ठीक है, और इसमें देखो सैम्पल साइज कैसा आपका, एंड सेम और एक डिफरेंस है, सेम ही हम काउंट कर देंगे एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन द सैम्पल, एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ सैम्पल. ठीक है, सो टोटल एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आप बोल सकते हो, बट वेरिएबल्स यूनिट में कैसा रहता है, यूनिट चार्ट में वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट, और सी में रहेगा नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन द होल सैंपल, एंटायर सैंपल में कितने डिफेक्ट्स है वो काउंट रहेगा आपका सी में, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट रहेगा दैट इज इन द सी में रहेगा, सॉरी यू में रहेगा आपका चार्ट. ठीक है, सो अभी यहाँ पे इफ यू सी दिस केयरफुली ऑब्जर्व, सैंपल साइज आपका कैसा, वेदर इट इज फिक्स्ड सैंपल साइज और वेरिएबल सैंपल साइज, एनीवन, वेरिएबल. your sample size is variable because you can see this sample मतलब यहाँ पे दिया है sample, you need to assume these things है ना. So क्या data दिया है, the length of coated product produced in a linear feet, so you can say this. So if you assume per linear feet, तो यहाँ पे 9250 feet इतना प्रोडक्शन हुआ है, and this is not constant for each and every sample, हर एक sample के लिए प्रोडक्शन वेरी हो रहा है. सो यूर वेरी सैम्पल, सो कौन सा चार्ट यूज होगा यहाँ पे, which chart you are going to use, थोड़ा सा रिप्लाई करो. सो यू चार्ट आप यूज करो, यूनिट चार्ट, राइट. सो यू चार्ट में यूज करना है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द सेंटर लिमिट फॉर यू चार्ट, और सेंटर लाइन बोलते हैं उसको, सेंटर लाइन फॉर यू चार्ट इज बेसिकली यू बार. ठीक है, and if you see this control limit, upper and lower control limit, it is given by u bar. ये सब डेटा हुआ है, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस पार्ट, u bar. so यहाँ पे 3 एक रहेगा, प्लस माइनस 3 लिमिट रहेगा आपका u bar प्लस ni bar, बिकॉज सैंपल अगर एक फिक्स्ड साइज सैंपल रहता है तो यहाँ पे ni बिकम्स n, तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी दो, एक +3 के ऊपर एंड एक -3 के ऊपर मिल जाएगा. बट यहाँ पे सैंपल का साइज वेरी हो रहा है, तो फॉर ईच एंड एवरी सैंपल द कंट्रोल लिमिट वेरीज. ठीक है, सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस म्यू बार, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट. कैसे कैलकुलेट करोगे, how to calculate number of defects per unit, it is simply adding all the defects, total number of defects, so you can call it as mu bar, आप कैलकुलेट कर सकते हो. total number of defects for I is equal to 1 to n, जितने भी सैंपल्स रहेंगे, and divided by number of total number of units. ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिस इज नॉट योर सैंपल साइज, you need to remember यहाँ पे जो n दिया, it is not, some people will mistakenly they will take it as a 60 number of samples, it is not, because u का meaning है कि per unit, और यहाँ पे unit क्या, it is a linear feet, तो per linear feet how many defects are there, that is the basic understanding of this mu bar. तो यहाँ पे आपको simply एक कॉलम का समीशन लेना है, so you will get a total number of defects and you will get a total units produced, so that summation here और डिनोमीटर पे आ जाएगा. कैलकुलेट करो कितना आता. तो सर ये जो टेबल में दिया है वो क्या है, कौन सा टेबल में, यही टेबल में ना, मतलब आपने बोला ना पर यूनिट ढूंढने का है, तो लीनियर फीट अभी फर्स्ट वाला दिया है वो क्या है, मतलब फर्स्ट इज सैंपल नंबर,
फर्स्ट इज अ सैंपल नंबर। नहीं लीनियर फीट में जो वैल्यूज दिए हैं ना वो कैसे है वैसे? This is nothing but how many feet. So 9250 feet. Feet is your length dimension. It is a linear dimension. So and it is thin film. Film. Suppose let us say this is a film. उसका एक width आप constant रखोगे तो let us say it is producing this. So this length of the film is nothing but your linear feet produced. That is 9250 feet of polyester film was produced in the first hour. Is it clear? Clear हुआ? नाउ आपको पर लिनियर फिट कितना डिफेक्ट्स, बिकॉज यू का मीनिंग क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर। यूनिट चार्ट इसलिए बोला यूनिट, पर यूनिट। यहाँ पे पर यूनिट मतलब इट मे बी यूनिट में भी एक सिंगल यूनिट में भी हो सकता है, इट मे बी फिजिकल प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इट इज इन गिवन इन द थिन फिल्म का है। सो यहाँ पे पर सिंगल फीट दैट बिकम्स योर पर यूनिट बन जाएगा आपका। तो पर सिंगल फीट कितने डिफेक्ट्स आपको काउंट करना है, दैट इज यू बार। कितना आता है? व्हाट इज द समेशन ऑफ हाउ मेनी डिफेक्ट्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स? यस गाइस, कैलकुलेट करो थोड़ा सा फास्ट, बिकॉज टू मोर न्यूमेरिकल्स हम लोगों को देखना है। हाउ मेनी डिफेक्ट्स आर देयर, काउंट कर रहे हैं आपको? तो डिफेक्ट्स 361 है। डिफेक्ट 361, and what is the total number of this feet produced? 140040। 140040। ओके सर, ये कितना आ रहा आप लोगों का एवरेज? 2.57 into 10 raised to minus 2.57 into 10 raised to minus 3। so अगर फ्रैक्शन में लेंगे तो 0.0257 ऐसा कुछ डिजाइन। सो दिस इज अ म्यू बार, ठीक है। दिस बिकम्स योर सेंटर लाइन ऑफ योर यू चार्ट, ठीक है। अभी उसका अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, बट इन दिस केस क्या बन जाएगा आपका, सिंस योर अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इज फेयरिंग अकॉर्डिंग टू योर सैंपल साइज। सो लेट अस सी यू चार्ट आपका जनरली कैसे दिखता है, ऐसे लेट on the x side we have the number of samples, right, and on the y axis आपके पास क्या रहेगा, the number of defects will be there। sorry, number of exactly नहीं हो रहा, number of defects per unit रहेगा, that is new part। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट रहेगा। सेंटर लिमिट आपने ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किया है, दैट इज 0.0। अभी आपको थोड़ा सा व्हेन यू आर ड्राइंग दिस ग्राफ, तो आपको थोड़ा सा राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है। वी कैन टेक इट इज लाइक 0.00
तो इसके ऊपर प्लॉट करते हो तो 0.001, 0.002, 0.003 और यू कैन गो विथ 21, 22, 23 ऐसे भी जा सकते हो, बट बेटर यहाँ पे जो वैल्यूज फ्रैक्शन में आ रहा है इट इज 0.02 तक आ रहा है, तो 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है। सो लेट अस इट इज कमिंग इट एज अ 0. मैं एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं करूँगा बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस विल बिकम 0.02 और लेट अस से मेरा सैम्पल साइज 1 है, यहाँ पे 2 है, 3, 6, 7, 8, 1। तो 1 के लिए प्लॉट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं आपको यहाँ पे जनरली क्या है, इट इज अ 1 सैंपल, वी आर कंसिडरिंग इट एज अ 50-50 सैंपल, मतलब से 1 आपको मैं एग्जांपल प्लॉटेड हियर, ठीक है। सो सीएल आपका आपके पास मिल गया, सेंटर लिमिट आपको 0.002577 तक, उन्होंने बहुत सारे डेसिमल्स पॉइंट्स लिए हैं, अगर आप 257 तक रेस्ट्रिक्ट करोगे तो इट्स ओके, और 26 भी किया तो भी चलेगा, 0.026 आप ऐसे भी किया तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने प्लॉट किया, ठीक है। अभी मैंने बोला कि अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट आपको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं मिलेगा बिकॉज इट वेरीज अकॉर्डिंग टू योर सैंपल, बिकॉज सैंपल साइज आपका वेरिएबल है। अगर सैंपल साइज फिक्स्ड रहता तो आपको स्ट्रेट मिल जाएगा, आपको स्ट्रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम अपर लिमिट और मैक्सिमम लोअर लिमिट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये किसके लिए रहेगा, बिकॉज योर म्यू बार इज डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पे म्यू बार कांस्टेंट है, ये म्यू बार कांस्टेंट है, तो एन आई आपका वेरी है, तो एन आई इज अ डिनोमिनेटर पार्ट, सो डिनोमिनेटर पार्ट जितना मिनिमम रहेगा उतना ये वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा ये एंटायर पार्ट। अगर एक प्लस करेंगे तो अपर लिमिट को मिलेगा एंड माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो सैंपल नंबर इट इज यू कैन से दिस 7250 11 सैंपल के लिए आपका क्या रहा है, एक बार थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, और लोअर लिमिट के लिए भी लोअर लिमिट, क्योंकि सेम चीज़ मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके लिए दिख रहा है, ठीक है। बट एग्जाम में आपको इंडिविजुअली प्लॉट करना है। अभी प्लॉट करते करते क्या करना होगा, दिस को सैंपल नंबर 1 दिया है उन्होंने, राइट। लेट अस से दिस सैंपल नंबर 2 दिया है, सैंपल नंबर 3, 4 है, तो 1 के लिए एग्जैक्टली यहाँ पे एक तो पॉइंट देखता है आपको, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन पॉइंट के ऊपर नहीं ड्रॉ करना था, 50-50, तो 1 और 1.5 तक की लाइन आपको एक्सटेंड करना है। लेट अस से यहाँ पे फर्स्ट के लिए कितना आपको म्यू बार आपको लोग करोगे +-3, ये म्यू बार दैट इज 0.0257 डिवाइडेड बाई एन आई, मतलब यहाँ पे 9250 से डिवाइड करोगे, राइट, सैंपल साइज, तो you will get a certain values. So let us say that value is x from 1 तक यहाँ पे 4, ठीक है। Just तो यहाँ तक जा रहा है। अगर नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो कहाँ पे 810 से सिंपली 9250 रिप्लेस करके 8100 ड्रॉ करना है। सो 8100 लेसर मतलब थोड़ा सा अपर लिमिट ऊपर जाएगा, सो यू हैव टू टेक द स्टेप। तो यहाँ से ऊपर जाना है आपको, जो भी वैल्यूज आया रहेगा प्लस माइनस, तो यहाँ से फिर से 2 के 50%, मतलब ये कितना विड्थ उसको लेना है तो 50 पे, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2.5 तक उसका रेंज एक्सटेंड कर सकता हूँ। बट इट डजेंट, इट ओनली टॉक्स अबाउट द सैंपल नंबर 2, वो आपको याद में रखना पड़ेगा। सो यहाँ से फिर से लेगा आपने, ठीक है, देन टेक इट हॉरिजॉन्टल, फिर से ऐसे, तो इट विल लुक लाइक अ स्टेप्ड, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एक स्टेप में रहेगा आपके पास, ठीक है। सो ये आपको ऐसे प्लॉट करना है, एंड अपर कंट्रोल एंड लोअर कंट्रोल लिमिट आपने प्लॉट किया, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना है आपको, इंडिविजुअल सैंपल का रीडिंग्स आपको प्लॉट करना है। सो राइट, ये कैसे प्लॉट करोगे, यहाँ पे जो म्यू बार आपने कैलकुलेट किया था इट इज पर यूनिट कैलकुलेट किया था, अभी आपको ये पर सैंपल कैलकुलेट करना है। सो हाउ टू डू दैट, तो सिंपली 27 मल्टीप्लाइड बाय 9250 करोगे तो यू विल गेट वैल्यू दिस वन। सो 27.9250 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इफ़ यू टेक नेक्स्ट सैंपल को 17 डिवाइडेड बाई 8100 करोगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल पॉइंट प्लॉट करना है, यू नीड टू जॉइन ऑल दिस पॉइंट, एंड यहाँ पर देख रहे हो कि ऑल द पॉइंट्स फॉल विद इन दिस अपर कंट्रोल एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, सो दैट यू कैन इंटरप्रेट आप कर सकते हो कि this process was in statistical control, and the same thing you can use it for current and future production के लिए same control limit आप use कर सकते हो। so that is the interpretation of this U chart। क्लियर है गाइस, कुछ डाउट रहेगा तो, क्योंकि ये एग्जाम में आपको ये प्लॉट करना पड़ेगा, एग्जाम में 15 सैंपल भी नहीं रहेगा, आपको 10 सैंपल तक ही मैं दे दूंगा, क्योंकि ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए टेक्स टाइम।
Any doubt in this part? कुछ डाउट रहेगा, any clarification is required, please let me know. कुछ समझ में नहीं आया है? तो सैंपल 2 के लिए 1.5 to 2.5 करना है ना, मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर हाँ कंट्रोल लिमिट। हाँ, मतलब वो एग्जाम्पल जैसे एक बार देखता ना, अभी 1 कैसे रिप्रेजेंट करता है ऐसे बार, सो एक इक्वल प्रोपोर्शनल विड्थ लो ले यहाँ पे, ठीक है। कि मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे स्केल ड्रॉ करके नहीं लेना, उसका जो विड्थ रहेगा इधर रहेगा, क्योंकि विड्थ तो सेम रहेगा हर एक का विड्थ, ठीक है। ठीक है। और ये इंडिविजुअल एक जो यू बार जो कैलकुलेट किया था, इट इज़ पर यूनिट के लिए कैलकुलेट किया था, अभी आपको पर सैंपल प्लॉट ड्रॉ करके ये इंडिविजुअल पॉइंट्स प्लॉट करना है, ठीक है। सो इतने क्वेश्चन रहेगा आपके, इतना लेंथी, थोड़ा सा लेंथी मतलब इतनी कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, सिर्फ खाली आपको लिमिट्स याद में रखना है और कौन सा चार्ट कैसे यूज़ करना है, किधर यूज़ करना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। Just go through the second sample. Second example, just read this statement. The data in the table represent the results of inspecting all units of personal computer produced for the past 10 days. तो 10 days के लिए उन्होंने क्या दिया, नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड, उसका इंस्पेक्शन उन्होंने किया, डे 1 में कितना प्रोड्यूस किया, डे 3 and they asked the question, does the process appear to be in control? Okay. And they are told that select and use the appropriate control chart आपको use करना. So which one you will prefer? First tell me whether you are going to prefer attribute control chart or variable control chart. एट्रीब्यूट से। Attribute because average range ऐसा कुछ values mention किया ही नहीं है, तो it is, and plus they have given the non conforming units का एक column दिया, तो attribute. तो attribute में कौन सा use करोगे? सर एनपी चार्ट। NP चार्ट। एट्रीब्यूट में मेरे पास पी एंड एनपी चार्ट है, ठीक है। सो पी चार्ट दोनों में, पी चार्ट में क्या होता है, पी स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन ऑफ नॉन कंफर्मिंग यूनिट्स, फ्रैक्शन ऑफ नॉन कंफर्मिंग यूनिट्स, ठीक है। एंड दिस एनपी में क्या रहता है, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ नॉन कंफर्मिंग यूनिट्स, नंबर ऑफ नॉन कंफर्मिंग यूनिट्स। एट्रीब्यूट चार्ट क्यों यूज किया? बिकॉज एट्रीब्यूट क्या है मेरा, एट्रीब्यूट इज दैट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक विच कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन अ न्यूमेरिकल स्केल और डायमेंशन के साथ। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है, इट इज़ गिवन फॉर नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स। नॉन कन्फर्मिंग मतलब द डिफेक्टिव यूनिट्स, एंड डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए जो चार्ट यूज होता है दैट इज एट्रीब्यूट चार्ट्स। क्लियर हुआ? यस। ओके। तो उसमें मेरे पास पी एंड एन पी चार्ट है। पी में मैं क्या काउंट करता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स। तो यहाँ पे बेसिकली फ्रैक्शन में वैल्यू मिल जाएगा, और इफ़ यू पॉसिबल यू कैन आल्सो गो विद द परसेंटेज, ठीक है। और एनपी चार्ट में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स। सो हाउ मेनी नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स आर देयर इन अ सैंपल, जनरली हो जाता है। मतलब अगर सैंपल का साइज आपको पता रहेगा तो आप डायरेक्टली पी को, इस फ्रैक्शन को, मतलब फ्रैक्शन चार्ट, पी चार्ट को आप एनपी चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि विच वन टू यूज, एनपी यूज करना है कि नॉन एनपी, क्योंकि नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स तो दिया है, सो नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है, फ्रैक्शन नहीं दिया है। बट इफ यू सी दिस सैंपल साइज, कैसा आपका सैंपल साइज, वेदर इट इज फिक्स्ड और वेरिएबल? सर वेरिएबल है। सैंपल साइज इज वेरिएबल। तो मैंने पहले बोला था कि प्रीवियस लेक्चर्स, if you have a fixed sample size or if you have a variable sample size, so P chart can be used for both fixed and variable sample size, and NP chart can be used only for fixed sample size, क्योंकि NP chart का आप सेंटर लिमिट देखोगे तो it is a NP है, right? So this N is varying, right? So यहाँ पे NI
पी आएगा. सो दिस n इज वेरिंग, मतलब ये सेंटर लाइन आपका कंटिन्यूसली वैरी होगा. जब सेंटर लाइन कंटिन्यूसली वैरी होगा देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लॉट दिस चार्ट. तो आपको सेंटर लाइन, ठीक है, आपका कंट्रोल लिमिट वैरी हो रहा है फॉर ईच एंड एवरी सैंपल, दैट इज यू कैन एडजस्ट एक स्टेप बार. इंस्टेड ऑफ हैविंग अ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल लिमिट आप स्टेप्ड कंट्रोल लिमिट ड्रॉ करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो. बट आपका सेंटर लिमिट इटसेल्फ वेरी हो रहा है तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट इट. ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे एनपी चार्ट यूज नहीं हुआ. दो नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स आर देयर बट यू कैन नॉट यूज बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल सैंपल साइज. तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पी में. हाउ टू डू दैट? पी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो. इफ यू नो द नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड, पी कैसे कैलकुलेट करोगे? एनीवन? लेट अस से फॉर द फर्स्ट सैंपल और फर्स्ट डे इज कंसीडर्ड वन सैंपल. ठीक है, तो फर्स्ट सैंपल का क्या रहेगा, मेरे नंबर फ्रैक्शन नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स कितना रहेगा? एनीवन? सर नॉन कंफर्मिंग यूनिट्स डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज. ये सर वो सिंपल है. हर एक ये सैंपल के लिए और फिर बाद में डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सैंपल. यहाँ पे पी चार्ट में पी क्या इंडिकेट करता है? इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स पर सैंपल. ठीक है, सिंपली पी मतलब फ्रैक्शन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स पर सैंपल. तो फर्स्ट के लिए पी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा तो इट इज सिंपली द नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स divided by total number of units inspected. So how much it is coming? I think 4 divided by 421 divided by 20. I know that approximately 0.05 के आसपास, exactly 0.05. So this is a p parameter for first sample. Then similarly we are going to calculate it for second sample. 7 divided by 110. So calculate this for all the 10 samples. Then if you see this, since you decided to use the P chart, and P chart के लिए अगर आप center limit देखोगे तो it is P bar. So it is simply nothing but summation of all these PI values for each sample divided by this number of samples, that is N10. एंड अगर आप अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट सेट करना चाहोगे तो इट इज, since it is a variable sample size, it will become 3 into square root p bar minus these are the upper and lower control limit. क्योंकि यहाँ पे ni हर एक सैंपल साइज वेरी हो रहा है तो ni यहाँ पे वेरी होगा. अदरवाइज सेम यहाँ पर फिक्स 80 रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्टली 80 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंट्रोल लिमिट आपको मिल जाएगा. सो प्लीज लेट मी नो हाउ मच दिस सेंटर लिमिट इज कमिंग. एक ग्राफ ड्रॉ करो, ओनली 10 सैंपल्स आर देयर एंड इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ दिस. एक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको उसमें व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग व्हाइल ड्राइंग दिस ग्राफ्स और चार्ट्स, यू विल नॉट कम टू नो. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ दिस चार्ट. सर वो कंट्रोल लिमिट में जो डिनोमिनेटर है वो एन, उसका मतलब नंबर ऑफ डेज है क्या? 1 2 3 4 5? हाँ, it is 10, it becomes 10. All the p, it is nothing but summation of all the p's, fraction non conforming, इसका summation लिया तो उसका average लेना आपको. p bar is nothing but बार जब भी आएगा तो average, so all the p's का average. So formula में लिखना है तो ऐसे लिखोगे p1 p2 p3 p10 divided by 10.
What is P bar here? सर P bar 0.0616. 0.0616. It's okay. 0.0616. So you can take it as a 0.062 तक आप लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है. एंड अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट अगेन एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस एग्जांपल आपको फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है. ये हर एक चीज के लिए वेरी होगा. अभी आपको क्या करना है, व्हाट इज ऑन द एक्स पैरामीटर, एक्स साइड पे रहेगा नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है. और वाई डायरेक्शन पे क्या रहेगा, योर क्वालिटी एट्रीब्यूट, एंड योर क्वालिटी एट्रीब्यूट इज हियर सिंस इट इज अ पी चार्ट, दैट इज पी रहेगा. एंड पी का आप सेट करो, यू कैन टेक इट लाइक मतलब 0.01, 0.02, 3, 4 4 ऐसा भी ले सकते हो, और इफ यू विश यू कैन टेक 0.02, 0.04 ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है. सो बेटर 0.01, 2, 3, 5 ऐसे ले लो, सो दैट आप इसके बाद जो भी यूनिट रहेगा 1, 2, 3 तक वो भी आप अगर राउंड फिगर करोगे तो वो भी आप प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन 1 to 2, ठीक है. सो लेट अस से इट इज आई एम टेकिंग इट एज अ 0.01, 0.02, लेट अस से यहाँ तक आपका 0.06 आया, 0.08 एंड 0.1 तक ले लो. एंड लेटेस्ट से 0.06 होना है तो 1 के ऊपर एक जो स्केल आएगा 1 यूनिट, और that will be your for CL, and basically it is nothing but your P bar. So 0.0616, ठीक है. ये सैंपल नंबर मेरा कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेट अस से 1, ठीक है. 1 के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पी बार आपके पास है +3, पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाई एन आई. तो एन आई कितना है वहाँ पे, कैलकुलेट करो. फर्स्ट के लिए कितना आता है, सर यस. फर्स्ट का सैंपल साइज है, यस. एनआई के लिए 80 रहेगा ना. हाँ 80 रहेगा फर्स्ट के लिए 80, बिकॉज इट इज वेरी 80, 80, 90, 90 वैल्यू हो रहा है. यहाँ पे एन हर जगह पे ऐसा होता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग है. बेसिकली इट इज सिंपली पी बार में इसका एवरेज ले रहा था, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ सैंपल्स रहेगा. यहाँ पे ये इंडिविजुअल सैंपल साइज के लिए वेरी हो रहा था, इट इज व्हेन हियर यू स्टार्ट विद सैंपल साइज. कितना आ रहा है, एक पहला बोलो. सर यस, सर फर्स्ट वाले के लिए लोअर कंट्रोल लिमिट नेगेटिव वाला है तो चलता है. इफ इट इज कमिंग नेगेटिव देन यू हैव टू सेट इट टू 0. ये मैंने बोला था आपको, बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन नॉन कन्फर्मिंग, इट कैनॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी अ 0 बट इट कैनॉट बी नेगेटिव. 0 आप ले सकते हो. सो 0 आ रहा है तो डायरेक्टली यू कैन टेक इट एज 0. यहाँ पे हाफ तक आप 0 ले सकते हो.
अपर कंट्रोल लिमिट कितना आ रहा है? तो 0.088। 0.088 मतलब 0.08 मतलब यहाँ तक रहेगा, लेट अस से 0.08 तो यहाँ पे है। देन उसके बाद सेकंड सैंपल के लिए जो भी रहे, सेकंड सैंपल के लिए आप पी बार तो सेम ही है ना, है आपका ज़्यादा बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग मीन्स दिस वैल्यू इज डिक्रीजिंग, तो और इससे भी डाउनवर्ड स्टेप आएगा आई थिंक तो इसके लिए डाउनवर्ड स्टेप आएगा, इसके लिए भी डाउनवर्ड और नेगेटिव में जाएगा, बट यू नीड टू कंटिन्यू द टू दिस सैंपल, तो आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। सिमिलरली यू हैव टू गो विद द थर्ड सैंपल, थर्ड सैंपल में थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे आप कंटिन्यू करो, कंप्लीट कर सकते हो बाकी के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू ड्रॉ दिस इंडिविजुअल पी बार, तो एक बार यहाँ पे हो गया तो इंडिविजुअल पी, तो फर्स्ट के लिए जो पी का वैल्यू रहेगा, सो दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 8 0.05, तो यहाँ पे 0.06 है, तो इट विल कम बिलो दिस लोअर कंट्रोल लिमिट, मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा। सेकंड 7 डिवाइडेड बाई 1 0, 90 डिवाइडेड बाई 1, ये हर एक प्लॉट करो, join this all this p bar, then decide whether your process is in statistical control or not control, ठीक है। ये प्लॉट करके देखो, मैंने प्लॉट नहीं किया बिकॉज आई सॉल्व एग्जाम्पल है, आप प्लॉट करके देखो एंड कुछ आपको गलत मतलब आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो तो देन प्लीज लेट, ठीक है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? कुछ डिफिकल्टीज रहेगा तो अभी बोल दो, क्योंकि होप प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, आई थिंक नेक्स्ट वीक में आपका एग्जाम रहेगा मोस्टली। आप लोगों को नया आपका एकेडमिक कैलेंडर मिल जाए क्या? हाँ सर, उसमें तो 2021 वैसा कुछ है। तो सेम एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट में चेंज नहीं हुआ है ना, टर्म टेस्ट 81 का 21 22। नहीं सर, हाँ फिर आपका आइडिया है कि असाइनमेंट होने वाला है कि ऑनलाइन होगा कि क्या होगा? वो तो पता नहीं ऑनलाइन होगा मोस्टली, अभी का सिचुएशन देखा तो इट में भी इट माइट भी ऑनलाइन ही रहेगा आपका और फिलहाल सर के हम लिए। लोग का हैंडसम एग्जाम कैसे होने वाला है, लाइक ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, क्या है? नहीं एज ऑफ नाउ मतलब अभी का जो सिचुएशन कंसिडर करके जाओगे तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑफलाइन, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑफलाइन के लिए प्रैक्टिस करो आप लोग, क्योंकि अभी इतनी सेमिस्टर्स आप ऑनलाइन लिख रहे हैं तो आप लोगों को लिखने का आदत ज़्यादा नहीं रहेगा, सो लिखने मतलब जो भी सम सॉल्व कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके थोड़ा सा सॉल्व करो, थोड़ा सा आदत लगना चाहिए। सो 90% इट्स गोइंग टू बी ऑफलाइन, अगर इन वर्स्ट कंडीशन फिर से कोरोना का कुछ ये हुआ तो ऑनलाइन होने का चांसेस है, लेकिन एज ऑफ नाउ इट इज़ ऑफलाइन, ठीक है। इस सैंपल में कुछ डाउट है? नो डाउट? इफ देयर आर नो डाउट देन सर लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के लिए हर एक पी का वैल्यू कैलकुलेट करके वो ड्रॉ करना पड़ेगा क्या ग्राफ में? नहीं, ये लोअर एंड अपर कंट्रोल लिमिट के लिए पी बार तो सेम रहेगा, दिस इज अ पी बार, ये तो सेम अरे वो रहेगा। बराबर है, वो हम लोग को एवरेज वैल्यू मिलेगा ना, लेकिन हाँ वो ग्राफ में पता है आपने बोला ना स्टेप ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, हाँ हाँ। तो हर एक पी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये हर एक पीक वैल्यू के लिए नहीं है, हर एक सैंपल साइज के लिए है, हर एक सैंपल साइज के लिए। फर्स्ट सैंपल का जो सैंपल साइज 80 110 उसके लिए स्टेप आएगा आपके पास। वही तो मतलब सर, वो जब कैलकुलेट करेंगे तभी हम लोग पी बार के जगह पे पी लेंगे ना, वैसा पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, पी बार यहाँ पे पी नहीं लेना है आपको, पी बार ही लेना है, जो पी बार आपने जो सेंटर लिमिट कैलकुलेट किया था हाँ और ये लेना है। ये हर जगह पे 0.616 ही आएगा हर एक लिमिट के लिए, तो सर वो तो 0.06। फिर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ना अपर कंट्रोल लिमिट का। नहीं, ये यहाँ पे एनआई चेंज हो रहा है ना तुम्हारा, ये डिनोमीटर चेंज जो प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट में लिखा है वो हाँ एनआई चेंज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई आपका अपर कंट्रोल लिमिट का अच्छा, स्टेप तो नहीं है। वो सिर्फ एनआई चेंज करके हम लोग को सॉल्व करते मतलब ड्रॉ सिर्फ करते जाते हैं, वैसा है? हाँ, सिर्फ एनआई चेंज करके आपको ये स्टेप
कंट्रोल लिमिट सेट करना है आपको, अपर कंट्रोल एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। और इंडिविजुअल सैंपल के जब आप प्लॉट करोगे, राइट, ये जो मैं हर एक प्लॉट का ऑब्जर्वेशन में प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ। इसके लिए आपको इंडिविजुअल पी लेना है। सो पी और पी बार में यही डिफरेंस है। P stands for individual samples and P bar is average of all these samples. तो जब आप इंडिविजुअल सैंपल के प्लॉट करोगे तो ये P4 डिवाइडेड बाई 80 कंसिडर करोगे, इसे 7 डिवाइडेड बाई 1105 डिवाइडेड बाई 90 ऐसे कैलकुलेट करोगे हर एक सैंपल के लिए। तो वहाँ पे आपको ये प्लॉट्स पॉइंट्स प्लॉट करोगे। और लिमिट के लिए ये P बार ये सेम ही रहेगा, ओनली इट वेरीज विद Ni। क्लियर हुआ? ठीक है, ये थोड़ा सा नोट करके केदारनाथ की। ठीक है, if you are done with this sum, let us go with the third sum। ये भी एक बार सम देख लो आप लोग। गैस ये सेम सम्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, मतलब आप प्लॉट करके सबमिट कर रहे हैं मैंने, और ट्यूटोरियल्स सॉरी, और जो एक्टिविटीज़ मैंने बोला था आपको वो मुझे सबमिट करके लेना है। सो समहाउ मैंने वो असाइनमेंट प्रिपेयर नहीं किया, बट बाय दिस संडे मैं वो असाइनमेंट भी प्रिपेयर करूँगा एंड आई विल अपलोड ऑल दिस पीपीटी बिकॉज नेक्स्ट वीक में आपका एग्जाम रहेगा, तो आई विल अपलोड दिस ऑल दिस पीपीटी आल्सो बाय दिस संडे। ठीक है, सो थर्ड एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे दिया है कि हाई वोल्टेज पावर सप्लाई शुड हैव अ नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज ऑफ 350 ओम। सो नॉमिनल, दिस इज द टारगेट वैल्यू, कैन से 350 वोल्टेज। A sample of 4 units is selected each day and tested for process control purpose। तो एक सैंपल कब किया है? सैंपल ऑफ 4 यूनिट्स इज सेलेक्टेड ईच डे, हर दिन एक एक सैंपल सेलेक्ट किया है एंड उसका सैंपल साइज कितना है? दे कैन से दिस 4 सैंपल्स आर देयर, सॉरी ऑफ 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर देयर इन ईच सैंपल। तो x1 x2 x3 x4, तो यहाँ पे 4 है तो हर एक सैंपल के लिए 4 क्या बन गया आपका सैंपल साइज। तो इस इज अ केस ऑफ फिक्स्ड सैंपल साइज। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 बन गया आपका फिक्स्ड सैंपल साइज एंड नंबर ऑफ सैंपल सेम कितना है आपका? 10 है। ठीक है, the data shown in the table give the difference between the observed reading on each unit and the nominal voltage times state, right? So whatever the value they have given here, x1 x2 x3 का, उसके लिए अलग expressions है। what they have told, it is nothing but it represent the difference between the observed reading, जो actual voltage का reading है, minus the nominal voltage that is 350 voltage and that whole term is multiplied by 10। so उसका मीनिंग है, तो 6 यहाँ पे रहेगा, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा आपका? ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ वोल्टेज। सो लेट अस से मुझे x1 पता नहीं है, राइट, x1 इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ माय वोल्टेज, ठीक है, माइनस दिस नॉमिनल वोल्टेज, दिस होल टर्म मल्टीप्लाइड बाय 10। तो आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के एक्चुअल वोल्टेज का रीडिंग आपको पता करना है, तो 6 डिवाइडेड बाय 10 मतलब ये 0.6 आएगा। ये माइनस आप इधर डालोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो इट विल बिकम 350, तो 350.6। so this is the actual voltage। तो 6 stands for 350.6, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। so actual voltage that is first observation in first sample is 350.6। तो यहाँ पे 9 रहेगा तो 350.9 आएगा मोस्टली, इट विल बिकम 9 डिवाइडेड 0.9। सो यहाँ पे प्लस जो होगा तो 350.9 आएगा यहाँ पे। सिमिलरली ये 351 आएगा, यहाँ पे 351.5 आएगा। तो ऐसे आप एक बार आपको अंदाज़ आ गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। पहले इस टेबल को आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सेटअप एक्स बार एंड आर चार्ट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स बार एंड आर चार्ट आपको सेटअप करना है एंड based on that you are going to tell whether your process is in statistical control or not। ठीक है, तो पहले तो आपको ये एक्चुअल वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कैसे कन्वर्ट करने का पता चला? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? यहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हो हर एक सैंपल के लिए, सॉरी हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 350, 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 350, आपको ऐसे ही करना है। डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट सो फार? ठीक है, इफ देयर आर नो डाउट्स
देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू ड्रॉ द एक्स बार एंड आर. इट इज नॉट अ सिंगल चार्ट, तो एक्स बार एंड आर चार्ट करने हैं. So for this x bar and r chart, you need to understand what is the center limit for x bar and r chart. So यहाँ पे क्या रहेगा, center limit. Center limit is x double bar. The center limit for x bar chart is x double bar. And upper and lower control limit, अगर आप upper control limit चाहोगे तो it is given by x double bar plus a2 r bar. अगर आप लोअर कंट्रोल लिमिट चाहोगे तो इट इज एक्स डबल बार माइनस a2 r bar. So फिर a2 is a constant and it depends upon एक टेबल का वैल्यू एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सैंपल साइज. तो सैंपल साइज 4 है, तो सैंपल साइज 4 के लिए आपको a2 पैरामीटर आपको वो टेबल से डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो एग्जाम में ये वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है. सो आप इफ यू वांट टू सी दिस टेबल, दिस चार्ट आपको यूज करना. सो दिस इज अ चार्ट फॉर एवरेज. तो एक्स बार एंड आर चार्ट आप यूज कर रहे हो तो ये टू पैरामीटर कैन एबल टू सी दिस. फॉर सैंपल साइज आपका 4 है, तो 4 के लिए वैल्यूज आएगा आपका 0.729. तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 0.729. और एक 2-3 सैंपल साइज इतना रहेगा तो इसका वैल्यू कितना रहेगा आपको मिल जाएगा 0.729. ठीक है. तो यहाँ पे आपका ये टू वैल्यू आ गया. इट इज इधर तो नोट करके रखो 0.729. ठीक है. तो अभी आपको क्या करना है, एक तो एक्स डबल बार कैलकुलेट करना है, आर बार कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करोगे एक्स डबल बार, हाउ टू कैलकुलेट एक्स डबल बार. कैसे कैलकुलेट करने का एक्स डबल बार, पहले x1 x2 x3 वो सब का लेंगे, फिर वो उसका एवरेज लेंगे. यस. तो पहले इस सैंपल का आपको चार ही ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेना है. सो दैट यू विल गेट एक सिंगल एक्स बार मिलेगा, एक्स सिंगल बार मिलेगा. ठीक है. तो ऐसे हर एक सैंपल के लिए आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पे आपका सैंपल नंबर ऑफ सैंपल्स आर 10. तो समेशन एक्स बार फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to i इज इक्वल टू 10. तो 10 सभी का एडिशन लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 10, तो विल गेट एक्स डबल बार मिल जाएगा. ठीक है. अभी कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा आपको ये इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. इट इज़ एक्चुअली 350.6 रहेगा, ये 350.9 रहेगा, ये 351 रहेगा, ये 351.5 रहेगा. सो दिस इज एक्चुअल वैल्यूज. तो इसका एवरेज लेके आपको एक्स बार मिलेगा. तो ऐसे हर एक सैंपल के लिए आपको कैलकुलेट करके उसका लेना है, तो देन यू विल गेट एक्स डबल बार वैल्यूज मिल गए. तो आपको सेंटर लिमिट मिल जाएगा, सेंटर लाइन मिल जाएगा. तो अपर कंट्रोल लिमिट के लिए आपको आर बार कैलकुलेट करना है. आर बार कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट आपको आर कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर ईच सैंपल. तो यहाँ पे फर्स्ट सैंपल के लिए आर क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन minus minimum observation. तो maximum observation is my 351.5 and my minimum observation is 350.6. ठीक है. ये एक R मुझे मिल गया. तो similarly I am going to calculate for each and every sample and this. Yes, go ahead. सर एक्स बार और आर निकालने के लिए वो पूरा फॉर्मूला भी नहीं यूज़ करें और सिर्फ जो गिवन वैल्यू है उसका ही एवरेज और आर बार निकाले तो फिर भी आंसर सर सेम ही आएगा ना. मतलब जो ये वैल्यूज दिया ये यूज करोगे तो क्या, हाँ सर, उसका ही अगर एवरेज निकाल के फिर वही एवरेज फॉर्मूला में डालेंगे तो सेम ही आंसर आएगा ना. नहीं सेम नहीं आएगा. एक्चुअली तुम्हारा सेंटर लिमिट क्या रहेगा, एक्चुअली वैल्यू सेम नहीं आएगा. मतलब
ट्राई करो एक वैल्यू, ट्राई करो, रेंज का वैल्यू अलग अलग रहेगा। फर्स्ट वाले के लिए सर ट्राई किया तो एक्स बार दोनों वे से सेम आ रहा है। कैसे सेम आएगा? यहाँ पे 6, 9, 10, 15 आ रहा है, तो इसका एवरेज को तुमने इसमें कन्वर्ट किया है क्या डायरेक्टली इस फॉर्मूले यूज करके? हाँ वही एवरेज उसमें डाला ओके, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस सिंगल 356 ऐसे कैलकुलेट करने की जगह तो 6, 9, 10, 15 लिया, सो इसका एवरेज कैलकुलेट किया, दैट एवरेज डिवाइडेड बाय 10 प्लस दिस 350 किया, तो वट एवर द वैल्यूज यू विल गेट। तो ठीक है, आ रहे तो हाँ, दैट वर्क्स आई थिंक। वो आ रहे तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं, यू कैन गो विद दैट आल्सो। ठीक है, तो सिमिलरली आपको ऐसे आर कैलकुलेट करना है, देन हर एक आर का एवरेज ले आते विल गेट आर बार आल्सो। तो सिंपली यहाँ पे पुटअप करो, विल गेट अपर कंट्रोल एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। सिंस इट इज अ फिक्स्ड सैंपल साइज, आपको यहाँ पे एक्स साइड पे क्या रहेगा, इट इज अ नंबर ऑफ सैंपल्स रहेगा, और वाई डायरेक्शन पे क्या रहेगा, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या आपका मीन है, सो दैट विल बिकम योर एक्स बार, मेरा मीन रहेगा। तो सेंटर लिमिट मेरा एक्स डबल बार रहेगा, हर एक सैंपल का जो एक्स बार है, एक तो अपर कंट्रोल लोअर कंट्रोल आपको खाली स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगे, एंड इन बिटवीन ए सिंगल एक्स बार जो भी है हर एक सैंपल के लिए सिंगल एक्स बार वैल्यू प्लॉट करना है, यू नीड टू ट्राई दिस। तो यहाँ से आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि वेदर योर सैंपल इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल और नॉट। ठीक है, सो जैसे इसने बोला, अभी जो स्टूडेंट ने बोला वैसे भी आप कर सकते हो, नो इश्यूज। Any doubts? Any doubt, guys, in this part? So ऐसे ही एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल्स आपको फाइनल एग्जाम और भी रहेंगे। ठीक है, so we'll do practice some few more numericals in the subsequent class. Sir. Yes, Sir, yes, go ahead. so TT1 will be in the form of assignment or it will be an exam form? नहीं, वो भी मुझे इंस्ट्रक्शन अभी तक कुछ आया नहीं है, so let us wait for this week. सर वो जो भी है सर, आप प्लीज पीपीटीज अपलोड कर हाँ, दीजिए ना प्लीज। हाँ, ये पीपीटी मैंने बोला कुछ भी हो तो हम लोग प्रिपरेशन थोड़ा बड़ा मतलब स्टार्ट कर हाँ, सके। बाय दिस मैक्स संडे तक मैं सबमिट कर देता हूँ, आप प्रेफरेंस। सर संडे बहुत टाइम हो जाएगा सर, अगला हफ्ता तो ये है तो टेस्ट है। यस सर, थोड़ा सा जल्दी मतलब हो जाए। ठीक है, चलेगा। जितना पोर्शन मेरे पास कवर हुआ है, फर्स्ट मॉड्यूल 1 का तो ऑलरेडी हुआ है, मॉड्यूल 2 का एक कंट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट का तो पूरा पीपीटी रेडी हो, मैं सेंड कर देता हूँ। सर मॉड्यूल 1 का भी आपने पुराना वाला अपडेट किया, उसमें वो नया अपडेटेड वर्जन नहीं डाला है। आप हाँ, बोले थे ना कि वो अपडेट करके डालोगे। हाँ ठीक है, मैं डाल देता हूँ। और सर और एक आपने ये भी बोला था ना कि सर आप एक रेफरेंस बुक या ऐसा कुछ दोगे जिसमें लाइक थोड़ा सॉल्ड एग्जांपल्स या ऐसा कुछ रहेगा। हाँ, अब चलेगा रेफरेंस। एक्चुअली ये रेफरेंस बुक है, इसमें एक स्टैंडर्डाइज ऐसा बुक्स नहीं, एक ही टेक्स्ट बुक जो दिया है मोंटेग्रे का, वो आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा सिलेबस कॉपी में, इवन मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। ठीक है, सब चीज़ें उसमें से, और कुछ मतलब एक स्टैंडर्ड ऐसा रेफरेंस बुक नहीं है सर। थोड़ा टेस्ट नजदीक आ रहा है इसलिए कंसर्न बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए, कोई इशू। ठीक है, then let us stop here. Acceptance sampling का ठीक है, this part will continue in the next class. सर क्यूए में असाइनमेंट है? नहीं, एक्चुअली असाइनमेंट टर्मवर्क बोल के ऐसा कुछ नहीं, बट फॉर आवर एनालिसिस पर्पस मतलब जनरली जो कमिटीज और उसके लिए मुझे असाइनमेंट करवा के लेना है। दैट इज व्हाट टाइम एक्टिविटी जो मैंने बोला था, मैंने वो मेरे तरफ से ही रह गया, मैंने वो असाइनमेंट क्रिएट नहीं किया है, वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। कुछ सम्स रहेगा और जो फर्स्ट मॉडल के जो भी एक्टिविटीज़ बोला था वो करके आप सबमिट कर सकते हो। दैट यू कैन सबमिट इन पोस्ट टेस्ट, टर्म टेस्ट होने के बाद भी आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, सर कल तक कर दोगे प्लीज? हाँ चलेगा, मैं कर देता हूँ। क्योंकि सर एक मतलब एग्जैक्ट 7 days में है ना, मतलब जो भी
और सर अपने को मॉड्यूल वाइज असाइनमेंट से ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मॉड्यूल वाइज असाइनमेंट ऐसा कुछ नहीं है, बट हर एक मॉड्यूल से थोड़ा थोड़ा सा एक मतलब 1-2 क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन लेके जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या किया ऑनलाइन बोल के, और रिकॉर्डिंग के लिए मुझे चाहिए, मैं कर लेता हूँ चीज़, मतलब ऐसा टर्म